Hello, dear students. We are studying ray optics, and in ray optics, we had studied till total internal reflection. Today, we are going to learn about the refraction through spherical surfaces. What are spherical surfaces? As we know that there are two types of lenses that we had already studied in class 10th. One is convex and other is concave. Here there is air, and here we have glass as a medium. Then again air we have. Here also we have air, glass, and then we have air. So basically what happens in case of lenses is the light travels first from rarer to denser medium, rarer to denser, and then comes out from denser to rarer medium, denser to rarer medium. This happens in both the cases, in convex lens as well as concave lens. So today we'll see that how the refraction occurs at the convex spherical surfaces and concave spherical surfaces. We'll take these four cases individually. What are those four cases? Suppose here we are having one convex surface, and here we have rarer medium, and then we have denser medium. The second case will be here we have denser medium, and then we have rarer medium. The same cases will occur in case of concave also, that rarer and after that denser, and then denser to rarer medium. So we are going to discuss all these four cases today, that how the ray travels from, in case of convex spherical surface, how the light travels from rarer to denser, and then we'll take the second case, that is from denser to rarer. In the same way we'll discuss the concave spherical surfaces, that how light travels from rarer to denser and then from denser to rarer. So let's see. Refraction at spherical surfaces. First of all, we are dealing with convex spherical surface. With surface? Convex spherical surface. And in this, we are going to discuss first about the light traveling from rarer to denser medium. That means the object is placed in the rarer medium, and that image will get across the denser medium. So what will be the ray diagram over here? So this is the convex spherical surface, and we'll have the principal axis over here. So this is our principal axis. Suppose here we have a object which is placed at O. That means this will be our object distance, which we are going to take it as U. Now, if the light ray travels from here and intersect at the interface, the refraction of the rarer medium is, refractive index of the rarer medium is suppose mu1, and refractive index of the denser medium is mu2. So here we have to draw a normal, and that normal must pass through its center of curvature. कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा. तो ये हमें नॉर्मल हर जगह बनाना है, जहां कहीं पर भी हमारा रिफ्रैक्शन होगा, वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल एज इट इज अ स्फीयर. सो ईच एंड एवरी नॉर्मल at its surface will pass through its center of curvature, that is C. That means this distance is going to be R. Now the light is traveling in this manner. ये रे बनाना बहुत जरूरी होती है बेटा. Now we are moving from a rarer to denser. That means the ray must bend towards the normal. Where is the normal? This is the normal. So the light ray will bend towards the normal, and here we are going to get the image in the denser medium. That means this will be our image distance, that is V.
We have to follow all the sign conventions which we had already studied in class 10th. The same sign convention is to be followed कि अगर पोल है तो पोल से अगर आप लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं तो दैट विल बी नेगेटिव, और इस साइड में अगर आप कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव. ऊपर की डायरेक्शन में जो भी चीज़ ले रहे हैं वो पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में आप जो भी चीज़ ले रहे हैं वो आपकी क्या होने वाली है, वो आपकी नेगेटिव रहने वाली है. तो इन्हीं साइन कन्वेंशंस को यूज करके वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर. हमें यू वी और आर में रिलेशन फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड दिस रिलेशन? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो भी स्फेरिकल सरफेस है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं कि ये जो भी स्फेयर बना हुआ है ये बहुत ही नेग्लिजिबल कर्व है. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस लाइन विल बी x एंड दिस विल बी नेम्ड एज y. मतलब ये और ये पॉइंट एक ही पॉइंट मानना है आपको. अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को अल्फा मान लूं, इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया, किसी भी एंगल को आप बीटा मान लें. फॉर एग्जाम्पल मैंने बीटा, जहाँ इमेज बन रही है इसको मैंने बीटा मान लिया, और जहाँ कहीं पर भी मेरा नॉर्मल मीट कर रहा है इसको मैंने गामा मान लिया. राइट. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई. व्हाट विल बी आई एंगल? दिस इज गोइंग टू बी अवर आई एंगल. नॉर्मल के साथ वाला आई एंगल होता है, नॉर्मल के साथ वाला आर एंगल होता है. मतलब आई और आर हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं. तो साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज गोइंग टू बी जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आते हैं. So this is going to be mu1 sin I is equal to mu2 sin R. Now what we have to do is we have to find the relation of I in terms of alpha, beta and gamma, and also the relation of R in terms of alpha, beta and gamma. So if I assume a triangle, suppose triangle OXC मैंने assume किया, तो इस ट्राइंगल में देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है. इसके लिए तो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, यानी कि आई जो मुझे मिल जाएगा दैट विल बी अल्फा प्लस गामा हो जाएगा. इन द सेम वे अगर मैं दूसरा ट्राइंगल अज्यूम करूं, ट्राइंगल सी एक्स आई, ट्राइंगल सी एक्स आई, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो सी एक्स आई, तो गामा इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है? गामा इज इक्वल टू मिल रहा है आर प्लस बीटा. मतलब मैं इस आर को गामा माइनस बीटा लिख सकता हूं, है कि नहीं? As the angles, these angles I and R are very small, what I can write is I can write mu1 into I is equal to mu2 into R. ऐसा लिख सकता हूं. तो mu1 एंगल्स आर वेरी स्मॉल. जब एंगल स्मॉल होते थे तो आपको याद होगा कि साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं कभी भी, और थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम इनमें से अज्यूम कर सकते हैं. तो आई की जगह पर हम एंगल क्या लिख सकते हैं बेटा? अल्फा प्लस गामा. और म्यू टू आर की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे? गामा माइनस बीटा. अगर मैं यहां पर फिर से इसको टेन अल्फा लिख दूं, इसको मैं टेन गामा लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल. दिस विल बी टेन गामा एंड दिस विल बी टेन बीटा. नाउ टेन अल्फा अगर हम देखें तो इट इज ओ वाई, सॉरी एक्स वाई अपॉन ओ वाई प्लस गामा इज एक्स वाई अपॉन वाई सी इज इक्वल टू म्यू टू. टेन गामा को अगर हम देखें तो वही हमें सेम मिलेगा, एक्स वाई अपॉन वाई सी, माइनस टेन बीटा को अगर हम देखें तो एक्स वाई अपॉन वाई आई. ऐसा ही रिलेशन मिलेगा हमें. जब हमें ऐसा रिलेशन मिलेगा तो एक्स वाई देखो हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा? देखते हैं हम लोग. म्यू वन अपॉन वन अपॉन क्या लिखा हुआ है? ओ वाई प्लस वन अपॉन वाई सी
इज इक्वल टू म्यू टू 1/YC प्लस 1/YI। ऐसा ही रिलेशन देखने को मिल रहे हैं हमें, बिल्कुल सही है। अब OY जो डिस्टेंस है वो हमारी नेगेटिव साइड है, मतलब आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि ये हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और YC कैसा लेना होगा, पॉजिटिव, और YI भी कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। जरा इन वैल्यूज को प्लेस करो, तो दिस विल बी μ1 OY मतलब माइनस ऑफ यू, प्लस YC मतलब ये R है, दिस इज इक्वल टू μ2, ये भी हमारा 1/R है डायग्राम के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज V, राइट। R वाले टर्म्स को एक साइड रखिए और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड रखिए। सो दिस विल बी μ1 अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस μ1 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन R प्लस μ2 अपॉन V। तो इन दोनों को एक साइड रखना है और इन दोनों को एक साइड, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं देखो इस वाली टर्म को इधर लेकर जा रहा हूं, ये माइनस का साइन था यहाँ पर जो हम लोगों ने गलत कर दिया है, इधर हमें माइनस मिल रहा था, माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें माइनस मिलेगा, माइनस। तो हमने क्या काम किया, इसको इस डायरेक्शन में ले गए, इसको इस डायरेक्शन में लेकर आ गए, तो दिस विल बी μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R is equal to μ2 upon V minus μ1 upon U. So this is going to be the relation when the light travels from rarer to denser medium in case of spherical surfaces. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस रिलेशन को हमें ध्यान रखना है, और याद रखने का देखो सिंपल सा तरीका, जिस मीडियम में जाते हैं माइनस जिस मीडियम में आते हैं, और वैसा ही रिलेशन आपको, मतलब किस मीडियम में आए हैं, μ2 में आए थे, माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 और 1/R इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो हमने म्यू U V और R में हमने रिलेशन निकाल लिया जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में प्लेस था, मतलब हम रेयरर से डेंसर जा रहे थे। यहीं पर अगर हम लोग सेकेंड केस देखें, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और किस केस में बात हो रही है, ये कॉन्वेक्स सरफेस की बात हो रही है। तो अगर कॉन्वेक्स सरफेस की बात हो रही है तो डेंसर से रेयरर जाना है, तो इसी तरीके का सरफेस बनेगा हमारा। तो अगर ये इसी तरीके का सरफेस बनेगा तो इसी तरीके का सरफेस यहाँ पर बना लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी दी सरफेस, ये हमारा डेंसर और ये हमारा रेयरर। सेम वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया। कैसे देखिएगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, यहीं पर प्लेस्ड है, दिस इज O, रे जाएगी इसी तरीके से, यहाँ पर देखो एक सरफेस मिला, सरफेस मिला तो सिंपल सी बात एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और जैसे ही हमने यहाँ पर नॉर्मल बनाया तो ऑब्वियस सी बात है इट मस्ट इंटरसेक्ट, कहाँ पर, इट मस्ट इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे जानी कैसी चाहिए थी, जानी स्ट्रेट चाहिए थी, जाएगी कैसे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज अवर नॉर्मल, यही अपना नॉर्मल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो अवे का मतलब ऐसा ही रे डायग्राम बनेगा। ये देखो अवे की डायरेक्शन में आ गई, मतलब ये इमेज मुझे इस केस में मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी U, this distance is going to be R, and this distance is going to be V. This angle is, for example, हमने क्या मान लिया, अल्फा, इस एंगल को अल्फा मान लिया, इस एंगल को हमने बीटा मान लिया, और इस एंगल को हमने गामा मान लिया। सेम वही हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, विच इज X एंड Y,
ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डेंसर है उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 माना है। तो अब फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आते हैं। मतलब हम किस में गए हैं, μ1 में, आए कहाँ से हैं, μ2 से। तो सिंपली अब इसको फिर से हम लोग वो μ2 इंटू आई लिख सकते हैं बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और इसको μ1 इंटू आर लिख सकते हैं। फिर से वही ट्राइंगल्स हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, और ट्राइंगल से पहले हमें एंगल आई अज्यूम करना पड़ेगा। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल अज्यूम कर लूँ कौन सा, ओ एक्स सी, तो ओ एक्स सी में गामा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, अल्फा प्लस आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा, ऐसे रिलेशन मिला। अगर हम यही ट्राइंगल की बात करें कौन से, सी एक्स आई की, तो सी एक्स आई के केस में आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा मिल रहा है। ये दोनों को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो μ2 इंटू आई की जगह पर लिख दिया हम लोगों ने गामा माइनस अल्फा, μ1 इंटू आर की जगह पर लिख देंगे हम लोग गामा प्लस बीटा, और यहीं पर μ2 ये हो जाएगा हमारा 10 गामा माइनस 10 अल्फा, μ1 10 गामा प्लस 10 बीटा। अब कुछ नहीं करना है, वही सेम काम, ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन गामा लिखना है मुझे तो सी वाई हो जाएगा ये, या वाई सी लिखो इसको, वाई सी। तो वाई सी लिखने की कोशिश करते हैं इसको, दिस इज वाई सी माइनस दिस इज एक्स वाई अपॉन अल्फा की जगह पर क्या लिख पाएंगे हम लोग, वाई ओ। दिस इज इक्वल टू μ1, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन वाई सी, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन बीटा इज वाई आई। तो एक्स वाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो μ2 इंटू 1 अपॉन वाई सी विल बी नेगेटिव यानी कि माइनस ऑफ आर, माइनस 1 अपॉन वाई ओ, दिस इज माइनस ऑफ यू, दिस इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन वाई सी इज माइनस ऑफ आर, प्लस 1 अपॉन वाई आई, दिस इज वी। ऐसा ही रिलेशन मिलेगा। ज़रा इन सब म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बी माइनस ऑफ μ2 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस μ2 अपॉन यू, दिस इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस आर, μ1 अपॉन आर, and the last one is plus of μ1 अपॉन वी। ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा। सेम वही काम करना है आपको, आर वाली टर्म्स को एक साथ, बाकी सारी टर्म्स को एक साथ। तो ये हो जाएगा देखो आपका μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू, μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। So this is going to be the formula for denser to rarer। तो देख लो, जिस मीडियम में जाते हैं माइनस जिस मीडियम से आते हैं। किस मीडियम में गए थे हम लोग, इस बार रेरर में गए थे, और रेरर हमने μ1 माना था, μ1 माइनस μ2 और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये तो आपको लेंस फॉर्मूला से ऑलरेडी याद होता है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। यहाँ पर एफ की जगह पर आपको 1 अपॉन आर मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड केस था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब यहीं पर अगर हम बात करें कॉनकेव सरफेसेस की, तो कॉनकेव में सबसे पहले रेयर टू डेंसर हम कॉनकेव सरफेस की बात करेंगे, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की। तो थर्ड केस इज कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और ये कहां से कहां जाएंगे हम लोग, रेयरर से डेंसर तक में जाएंगे। तो कॉनकेव कैसा होता है देखने में, कॉनकेव हमारा ऑब्वियस सी बात है इसी तरीके का लेंस होता है। तो रेयरर से डेंसर जाएंगे तो मतलब इसी तरीके से लेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बना दिया हमने एक लेंस, मतलब ये हमारा कॉनकेव सरफेस हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ओ, रे जो भी जाएगी ऐसे ही जाएगी। यहाँ एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमें, और वो नॉर्मल कर्वेचर से पास करेगा। ऑब्वियस सी बात है लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे, इट विल मूव टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा बेटा,
टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी मतलब यहीं से कहीं से पास कर रही होगी, ऐसा ही केस मिलेगा। और जब ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पर पास करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रे आएगी वो रे तो ऊपर कहीं जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर आपको ऑब्जेक्ट इमेज चाहिए तो आपको इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये आपका v हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका u, मतलब इसको इस पॉइंट को हम i मानेंगे, दिस पॉइंट विल बी i, इमेज बन रही है यहाँ पे i, so this is v and this is going to be r। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, वही हमें अल्फा बीटा गामा बनाने हैं और एंगल आई और एंगल आर बनाना है। तो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो ये जो भी हमारी रे है इस रे के साथ यही एंगल हमारा आई होगा, ठीक। और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल छोटा सा, दिस एंगल विल बी आर। तो इस एंगल को अल्फा मान लिया, इस एंगल को बीटा मान लिया, इस एंगल को हमने गामा मान लिया। यहाँ पर वही सेम एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको हम एक्स वाई नाम दे देंगे, एक्स वाई। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अब कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगा दें, तो रेयरर मीडियम है मतलब μ1 और डेंसर मीडियम है मतलब μ2। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो ये क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेगा। आई निकालना है हमें, तो आई निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल अज्यूम किया जाए, तो देखिएगा जरा ध्यान से। इन ट्राइंगल ओ एक्स सी, ओ एक्स सी, तो इसमें आई प्लस अल्फा जो है ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए और गामा जो है वो मुझे एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मुझे आई जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, गामा माइनस अल्फा, आई का रिलेशन आ गया। अगर मुझे आर निकालना है तो आर मेरा यही वाला एंगल है, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी मेरा आर ही होगा। यानी कि इन ट्राइंगल आई एक्स सी, आई एक्स सी, यहाँ पर देखो आर प्लस बीटा जो है वो भी मुझे गामा के बराबर मिल रहा है, यानी कि गामा इज इक्वल टू कितना, बीटा इज आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा माइनस बीटा, है कि नहीं। वही सेम वैल्यूज को उठाओ यहाँ पर प्लेस करो, तो μ1 इंटू इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे गामा माइनस अल्फा एंड दिस इज μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। तो μ1 इंटू गामा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब ये सारे डिस्टेंसेस ही नेगेटिव लेने पड़ेंगे, और अगर मैं ये सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लूँगा तो रिलेशन कैसे लिख पाएंगे, देखना। μ1 टेन अल्फा मतलब एक्स वाई अपॉन गामा, गामा कितना है हमारा, ये रहा, यानी कि माइनस ऑफ आर लिख दूँ सीधे सीधे, माइनस ऑफ एक्स वाई अल्फा, अल्फा यही एंगल है मतलब माइनस ऑफ यू आ जाएगा नीचे, दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू टेन गामा मतलब एक्स वाई अपॉन माइनस ऑफ आर हो जाएगा, और टेन बीटा मतलब एक्स वाई अपॉन बीटा की जगह पर मुझे माइनस ऑफ वी लिखना पड़ेगा, एक्स वाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, मतलब μ1 अपॉन आर प्लस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर प्लस μ2 अपॉन वी। ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। जब मैं इनको आर वाले चीज़ों को एक तरफ रखूंगा और वी वाली चीज़ों को एक तरफ रखूंगा तो देखो रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन विल बी μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। बिल्कुल सेम ऐसा ही रिजल्ट मुझे कॉन्वेक्स के केस में भी मिला था, मतलब ये रेयर टू डेंसर यही फॉर्मूला रहेगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, फॉर्मूला इज एप्लीकेबल while moving from rarer to denser in both concave as well as convex। दोनों ही केसेस में हमें
यही फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। और देखो हमने ये प्रूव भी किया। इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। ये नहीं कि हमने यहां पर साइन कन्वेंशन यूज कर लिया तो अब आगे यूज करने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन आपको हमेशा यूज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। अब हम लोग डेंसर टू रेयरर जाएंगे। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ही है, स्फेरिकल सरफेस, और इस बार हम लोग जाएंगे डेंसर टू रेयरर। और लेंस हमारा कैसा होता था, ऐसा ही होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे यहाँ पर सरफेस बनाना है तो सरफेस कुछ ऐसा ही बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओ, और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ओ है, लाइट कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा। ये बन गया हमारा नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ये कर्वेचर होना चाहिए। रे जानी कैसी चाहिए थी, जानी तो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी। जाएगी कैसे, बिकॉज ये रेयरर डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो देखो यहीं पर कहीं मिल रही होगी इमेज, यानी कि ये हमारा आई हो गया। वेरी इजी। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा गामा नाम दे देने हैं, और आई और आर, ये आई हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो एंगल है ये एंगल हमारा आर हो जाएगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस इज गामा। ठीक, तो अब हमें रिलेशन जो फाइंड करना है, बिल्कुल सेम वही काम करना है जो अभी तक हम लोग 3 बार से करते हुए आए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा। मैंने इसको लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो मैं सीधे सीधे अगर मैं लिख दूँ तो म्यू टू इंटू आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आर, ऐसा ही रिलेशन मिलेगा। तो आई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एंगल मेरा आई है, ये बीटा है। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ओ एक्स सी। ओ एक्स सी में देखो तो आई इज इक्वल टू आ रहा है अल्फा प्लस गामा, और इन ट्राइंगल आई एक्स सी को अगर आप चेक करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ रहा है बीटा प्लस गामा। बस यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा, ये क्या हो जाएगा टेन गामा। बस साइन कन्वेंशन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टेन बीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा म्यू टू। डायरेक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ, तो अल्फा जो है ये हमारा यू हो जाएगा डिस्टेंस, ये हमारी वी डिस्टेंस है, और ये हमारी आर डिस्टेंस रहेगी। मतलब यहाँ पर आर हमारा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि अल्फा अगर मुझे लिखना है तो वो जाएगा एक्स वाई अपॉन ओ वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये मुझे गामा, गामा मुझे मिल रहा है, ओ वाई की जगह माइनस ऑफ यू लिख दें सीधे सीधे, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस ऑफ यू, माइनस ऑफ यू, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू वन गामा, मतलब एक्स वाई अपॉन आर, एंड दिस इज बीटा, यानी कि एक्स वाई अपॉन माइनस ऑफ वी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू टू अपॉन यू प्लस ऑफ म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन वी। तो अभी इस रिलेशन को अगर हम देखें तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। अरे बिल्कुल सेम ऐसा ही रिजल्ट हमें कॉन्वेक्स के केस में भी मिला था, जब हम डेंसर से रेयरर जा रहे थे। तो this relation is to be used in case of lenses, in case of spherical surfaces, in both the cases, that is convex as well as concave. तो ये डेंसर से रेयरर वाला हमारा फॉर्मूला आ गया। एंड आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। इन्हीं सबको कंबाइन करके हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला,
क्या कहता है ये लेंस मेकर फॉर्मूला कि आपके पास है सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका अगर आप रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा, ऐसे ही जाएगा, इसका एक कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं पर, सपोज ये वो कर्वेचर है, मतलब यहाँ पर आपने कुछ, ये आपको C1 मिल गया, फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है। लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी, स्ट्रेट जाएगी, कैसे, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब ये बेंडिंग हो गई। और अगर ये बेंडिंग हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको एक इमेज मिल जाएगी फर्स्ट वाले सरफेस से, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, I1। लेकिन फाइनल इमेज जो मुझे मिलेगी वो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और अगर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो इसका जो कर्वेचर होगा वो इसी साइड में होगा, यानी कि यहाँ पर फिर से आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, यानी कि ये आपका C2 होगा। तो ये लाइट रे अब जानी कैसी चाहिए, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल इमेज। तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये हमारा रेयरर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम, और ये हमारा रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर हमें ये चीज हमें U मिल रही है, ये चीज हमें R2 मिल रहा है, ये चीज हमें R1 मिल रही है, ये चीज हमें V मिल रही है, और ये हमें एक इंटरमीडिएट इमेज मिल रही है जिसको हम V1 नाम दे रहे हैं, कि पहले वाले सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा। तो अब अगर मैं रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, दैट वाज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो पहले वाले सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर R1 लिखना पड़ेगा मुझे, और इस वाले सरफेस से इमेज कहां पर मिल रही है मुझे, ये इमेज मिल रही है फर्स्ट इमेज, यानी कि दिस मस्ट बी V1, ये मेरा रिलेशन 1 हो गया। ठीक, अब डेंसर टू रेयरर में जब हम जा रहे हैं तो डेंसर टू रेयरर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, μ1 अपॉन u, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलता था। तो सेकंड वाले सरफेस का यहाँ पर कर्वेचर आएगा, मतलब R2 आएगा, यही तो, ऐसा ही तो हमने डिराइव किया था। यहाँ पर फाइनल इमेज तो V हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखना पड़ेगा, V1। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो दिस इज μ2 था बेटा, तो इसको मुझे V1 लिखना पड़ेगा। दिस इज रिलेशन नंबर 2। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन 100 जगह से होगा, तो पहले वाले सरफेस से जो इमेज बन रही होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे वाले सरफेस से जो इमेज बन रही होगी वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तीसरे वाले से जो इमेज बन रही होगी वो चौथे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर जो फर्स्ट वाले से जो हमें इमेज मिल रही थी वो हमने सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अज्यूम कर लिया यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा बेटा, तो ऐड करने पर देखो मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी, ऐड करने पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि मुझे देखो यहाँ पर क्या रिलेशन मिल जाएगा, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और अंदर देखो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि ये उल्टा है नीचे वाला रिलेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, दिस विल बी μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u कुछ हुआ करता था हमारा, जिसको हम क्या नाम दे दिया करते थे, f नाम दिया करते थे। तो किसी भी लेंस की अब अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो और दोनों साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, तो मैं फोकल लेंथ बता दूंगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलती है, फोकल लेंथ पता चलती है किसी भी लेंस की। सेम यही काम, सेम ऐसा ही रे डायग्राम आप कॉनकेव के लिए भी बना सकते हैं। जब आप कॉनकेव के लिए बनाएंगे तब भी आपको रिलेशन कुछ सेम रिलेशन मिलेगा बिल्कुल। तो मतलब फोकल लेंथ निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो गया μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ। बचपन में हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, तो इसको हम पावर से भी डिनोट कर सकते हैं। और पावर अगर है तो पावर की यूनिट भी पता होगी आपको, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर हुआ करती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है,
P निकालने के लिए P इज इक्वल टू 1/f निकालने के लिए F को मीटर्स में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा? मीटर्स में, सेंटीमीटर में नहीं। पावर निकालने के लिए F को आप हमेशा किस में रखेंगे? F को आप हमेशा मीटर्स में रखेंगे। तो ये जो दोनों फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े, लेंस मेकर फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इन सब से रिलेटेड हमें ढेरों सवाल मिलते हैं बेटा, जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पर अगर कॉनकेव का मैं आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाऊं, तो कॉनकेव के लिए देखो रे डायग्राम कितना आसान है। ये मेरा कॉनकेव सरफेस, मतलब अगर मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है तो रे डायग्राम ऐसा बनाने के बाद आपको सीधे सीधे वो दोनों रिजल्ट्स यूज कर लेने हैं। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट O, यहाँ से जो भी रे जाएगी ऐसे ही जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नॉर्मल जो भी बनेगा फर्स्ट वाले सरफेस का नॉर्मल यहीं से बनेगा, क्योंकि इसका सेंटर इसी साइड में लाई करेगा। इसको मैंने नाम दे दिया C1। रे जानी कैसी चाहिए थी? जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी। जाएगी कैसे? बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी मतलब ऐसे ही जानी चाहिए थी। इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, मतलब ये मेरे लिए I1 हो गया। पहले वाले सरफेस से जो भी मुझे इमेज मिलेगी वो मेरी I1 हो जाएगी। अब ये दूसरे वाले सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर से मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाया तो ये मेरा जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी C2, क्योंकि ये सेकंड वाले सरफेस का कर्वेचर हो गया। ये रे जानी कैसी चाहिए थी? स्ट्रेट जानी चाहिए थी। जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल का मतलब ऐसे ही जाएगी, और अगर ये ऐसे जाएगी तो इमेज कहाँ पर मिल रही होगी? यहाँ पर कहीं मिलेगी, मतलब ये आपका आई हो गया। तो ये हमारे रे की ट्रैवलिंग डायरेक्शन हो गई, ये मुझे आई मिल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस विल बी योर U, दिस विल बी V1, दिस विल बी R1, दिस विल बी योर V, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर R2। बस ये हमने पढ़ने के लिए इसको इतना ज़्यादा थिक बनाया बेटा, इसकी थिकनेस को हमें नेग्लिजिबल मानना है। तो वही सेम काम, ये हमारा μ1 है, ये हमारा μ2 है, और ये हमारा μ1 है। तो जब हम रेयरर से डेंसर जा रहे हैं उस केस में हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए? μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो R की जगह R1 आ जाएगा, V की जगह V1 आ जाएगा, ये मेरा रिलेशन 1 हो गया। अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा हूँ तो उस केस में μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। R की जगह R2 आ जाएगा, U की जगह पहले वाले से जो इमेज बनी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे वाइल एडिंग। हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। एडिंग करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 मैंने कॉमन ले लिया, या μ2 माइनस μ1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला भी बिल्कुल देखो बेटा सेम आ रहा है आपका, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये डेरिवेशन था जो कि हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से एज वेल एज कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से आपको करके दिखाया, और पूरे के पूरे लेंस के लिए आप किस तरीके से फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं वो फॉर्मूला भी अब हमारे सामने आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो फोकल लेंथ डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इतना ध्यान रखना है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो μ2 है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है वो आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखेंगे, यानी कि म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। और आपको लेंस फॉर्मूला तो आपको पता है ही, लेंस मेकर इज डिफरेंट फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज डिफरेंट, -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता था बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको याद होगा, आपको ये भी पता है कि इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं।
रे डायग्राम्स भी आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से बनाने को सिखाए गए थे बेटा, और 3-3 नंबर में वो क्वेश्चंस भी आते थे। इसके अलावा आप मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस पढ़ते थे बेटा, और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस का जो आपका फॉर्मूला हुआ करता था, वो फॉर्मूला इस केस में आपको क्या मिलता था, इस केस में हमें जो फॉर्मूला मिलता था वो मिलता था हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। सो आज के लिए हमारी कहानी इतनी बहुत है बेटा, रेस्ट विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।